अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैम फिजिकली और आज आप लोग को लाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और फनी सी वीडियो। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है व्हाट लेड अ बाइकर टू बिकम अ हाथा योगा टीचर। से स्टार्ट। In Iran, it is not legal to ride a bike, and now I'm here with 4 bikes. My journey in the nature and mountaineering and these things started from my childhood. When I was riding bike, nothing else is important. You are just focused on one point. It is like a meditation. When I learned classic Hatha yoga, I understood how this body adjusts itself by itself. I'm Shakayik. I'm originally Iranian, based in Istanbul, Turkey. I'm a midwife. I'm the only classical Hatha yoga teacher in Turkey. In Iran, because it is not legal for women to ride a bike. So when I was in Iran, I couldn't have my bike. And now I'm here with 4 bikes. The max speed that I did till now is 220 kilometers per hour. So when you're going fast, there is a stillness there. You cannot focus on any other thing except the thing that you are doing now, and it's just being in the moment. It's like a meditation. I knew Sadhguru for many years. When I saw his videos, he's so knowledgeful in about bikes. He knows about the engines, different type of the bikes. He has different bikes. He's passionate in Ducati, and he loves the design of Ducatis. And then he was talking about the comfort and safeness of BMW. So he helped me to choose my bike. So I just wanted to know more about him. And I started research, and I just found Isha Hatha Yoga teacher training. Teacher training in Sadhguru Gurukulam is one of the biggest and the deepest trainings in the world. So I registered, but it was a little bit challenging for me to come here because I had to quit my job. I had to lose my clients because I wanted this so much. I just decided to just leave everything and come. And I understood that I am the only person in Turkey attend this training. So it was a big responsibility for me. Training was not so easy. It was very strict, and every day on, and you should wake up at 4. And even we were doing 8 hours of yoga, 4 hours in the morning and 4 hours in the evening, and it was too much for me at first. But during the time, my body got
I am a midwife professionally. A midwife means a medical staff that helps pregnant women to deliver babies and go through the pregnancy smoothly. In Isha Yoga, we have pregnancy modules that we, teach pregnant women to prepare their bodies for delivery and carrying the baby. After the deliveries, mothers sometimes come to me and share about the experience that they had during the delivery and after it, because of this yoga and awareness that they had for their body. They went through it easier and with more consciousness. Even for the babies there is a difference. ओ माय गॉड, मतलब कुछ चीज़ें कितनी इंस्पायरिंग होती हैं, कितनी मोटिवेशनल होती हैं। अच्छा, हमने ना योगा को का मतलब ये है कि पाकिस्तान की बात करेंगे, हमने योगा को ना बहुत ज़्यादा अंडररेटेड रखा है। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा इस चीज़ का कल्चर नहीं है। एक्सरसाइज करने का या योगा करने का या किसी भी किस्म के मेडिटेशन करने का ना हमारे यहाँ इतना कोई रवाज है नहीं। हमारी जो देसी फैमिलीज़ की बात करें तो मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ, चलिए अपर क्लास की अगर मैं बात करूँ तो वो लोग तो करते हैं, ठीक है, फिर भी वो लोग एक्सरसाइज और जिमिंग वगैरह की तरफ हैं, योगा वगैरह करते होंगे, ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज वगैरह की बात करूँ तो वो करते होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आ जाती हूँ मिडिल क्लास फैमिलीज़ की तरफ, देसी फैमिलीज़ की तरफ जो इतने एजुकेटेड नहीं है, तो वहाँ पे इन चीज़ों को इतना ज़्यादा ये कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक मामूली सा काम है, जो नहीं भी करें तो चलेगा ऐसा तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तो इस चीज़ को मैं ये कहूँगी कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझा गया या इतनी वैल्यू नहीं दी गई। अब जब आप मतलब जाहिर सी बात है, यानी कि बिफोर वेडिंग की बात हो रही होती है, ठीक है, उस वक्त आपके अंदर एक अलग एनर्जी होती है, उस वक्त आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ नहीं होती, या उस वक्त ये कह लें कि आप इतना फंसे हुए नहीं होते उन चीज़ों में और डेली के मामलात में, ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी आपकी इतनी टफ नहीं होती। क्योंकि जब आप एक प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आते हो, जिसमें आपने बच्चे भी देखने हैं, जिसमें आपने शौहर भी देखना है, जिसमें आपने फैमिली को भी देखना है, जिसमें आपने अपने आप को भी देखना होता है, तो उस वक्त ना आपको आके पता चलता है कि यार आप कितने वीक हो, ठीक है, और आपको चीज़ों की, एक्सरसाइजेस की या योगा वगैरह की कितनी ज़रूरत है अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए, फिट रखने के लिए, अपने आप को एक्टिव और तरोताज़ा रखने के लिए, ठीक है। अब जैसे अब मैं जो हूँ ना, मैं बहुत फील करती हूँ इन चीज़ों को कि यार मुझे योगा करना चाहिए, मुझे इन चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि मैं बिफोर वेडिंग तो फिर भी एक्सरसाइज वगैरह करती थी, बट आफ्टर वेडिंग ना मुझे टाइम मिला, ना मैंने इस तरफ अपनी तवज्जो को किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। क्योंकि हमें एक वो ये चीज़ है ना कि हमें हमारे पेरेंट्स की तरफ से और फिर बड़ों की तरफ से जो मिलता है तो हम उसी को फॉलो कर रहे होते हैं, तो भी दूसरी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बच्चों का ख्याल रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल ना भी रखो तो मसला नहीं है, क्योंकि हम जिन फैमिलीज़ में ना, उसमें अक्सर मदर्स अपने आप को पीछे कर देती हैं और अपनी औलाद के लिए, अपने
बच्चों के लिए करती हैं, बट ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये है कि जब आप अपने आप को भी फिट रखो और बच्चों के लिए भी करो, क्योंकि जब आप अपने आप को नेगलेक्ट कर दोगे, जब आप अपने ऊपर तवज्जो नहीं दोगे, तो बाद में बच्चों को ही परेशानी होने वाली, क्योंकि आपके अंदर वो बात, वो एनर्जी नहीं होगी। आप उस तरीके से बच्चों की परवरिश नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप खुद डाउन रहोगे, आपकी तबीयत वैसे ही सेट नहीं रहेगी, आप अपनी एनर्जी फील कर नहीं पाओगे कि आप अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सको। तो मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप पर तवज्जो दो, अपने आप को फिट रखो। और इसकी अगर इस वीडियो के अंदर हम अगर इन महिला की स्टोरी को देखें, तो वो एक बाइक करती है और वो ये कह रही है कि मुझे मैं जब बाइक चलाती थी ना, तो मैं फोकस करती थी, और जब मैं फोकस करती थी तो मैं तमाम परेशानियों को, मुश्किलात को भूल जाया करती थी, क्योंकि मेरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ बाइक पर होता था, बाइक की स्पीड पर होता था, बाइक को चलाने पर होता था। तो उस चीज़ से फिर मैंने रिलेट किया, और फिर इन्होंने बताया कि जब मैं योगा की तरफ आई, हाथा योगा मैंने सीखा, और क्लासिकल योगा में और मॉडर्न योगा में कितना फ़र्क है वो मुझे मालूम हुआ। और बाकायदा इन्होंने बहुत बार तारीफ़ भी करी ईशा फाउंडेशन की, सदगुरु जी की, कि भाई बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट है उनकी तरफ से। और फाउंडेशंस में कभी ऐसा नहीं होता, वाकई ऐसे ही है कि हम स्कूल से भी पढ़कर निकल जाते हैं, तो दोबारा कहाँ हम जाके कुछ मालूम कर सकते हैं, और कोई हमें फ्री ऑफ कॉस्ट बताएगा, हमें तो फिर अलग से क्लास अरेंज करवानी पड़ती है उस चीज़ के लिए भी। तो बड़ी बात है कि भाई जब आपने एक क्लासेस ले ली, आपने उस चीज़ को कंप्लीट कर दिया, उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम हुई, परेशानी हुई, तो आप जाकर पूछ सकते हो, और उसी वक्त वो आपको जवाब देते हैं, बताते हैं। तो ऐसा सपोर्ट वाकई शायद किसी और फाउंडेशन में, किसी और स्कूल में आपको ना मिले। तो बहुत बहुत अच्छा लगा देखकर। अच्छा, ऐसी स्टोरीज़ को देखना मैं इसलिए भी पसंद करती हूँ कि मैं इंस्पायर्ड होती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एनर्जी आई है, और शायद मैं इन चीज़ों को करूँगी। एक होता है ना, दिमाग में इंसान बार बार एक चीज़ को रिकॉल करता है, उसके बाद आखिरकार आप उसी तरफ जाते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा ना लापरवाह हूँ इन चीज़ों में, तो मैं ऐसे वीडियोस वगैरह देखने के बाद मेरे अंदर एक अलग सी एक मोटिवेशन फील होती है कि यार मुझे भी करना चाहिए। तो होपफुली मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कुछ आसन तो योगा के देखूँ। अच्छा, मुझे आप लोग एक बात का जवाब दें, इससे पहले भी जब मैं बहुत यंग एज में भी चाह रही थी, 16-17 की थी जब मैं चाह रही थी कि मैं योगा सीखूं, तो मेरे इर्द गिर्द के लोगों ने, सराउंडिंग्स में कुछ फ्रेंड्स वगैरह ने कहा कि यार योगा ना आप बिना टीचर के नहीं कर सकते, अगर आप योगा बिना टीचर के करते हो तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, कुछ स्टेप्स अगर आपने 19-20 कर दिए तो उससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, आपकी बॉडी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो क्या ये ट्रू है? क्योंकि वो चीज़ मेरे दिमाग में आज तक बैठी थी कि यार आप अकेले गूगल से देखकर, यूट्यूब से देखकर अगर आप करते हो तो मे बी कुछ 19-20 हो जाए, या हो सकता है, 100% हो सकता है। एक कोई इंसान अगर आपके सामने आपका टीचर और आप ओके भाई ये आ रही थी तो मैं इनको लेकर आ गई, और अगर ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं, क्योंकि रियलिटी आप लोगों से बेहतर कौन बता सकता है, तो मैं कंटिन्यू करूँगी, यूट्यूब से देखकर कुछ आसन तो सीखूंगी और उसको अपनी डेली लाइफ में लाजमी प्रैक्टिस करूँगी। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यहाँ तो बहुत गर्मी है, अपना हाल बताइए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।